Good morning, students. We have already discussed the first lesson. Now we will start the second lesson, that is electrostatic potential and capacitance. Now see, electrostatic potential is, the concept is similar as the gravitational potential that we had already studied in 11th standard. Gravitational potential में हमने सीखा था कि gravitational potential is nothing but what? The work done for requiring bringing any unit this thing any unit mass from the infinite distance to a given point inside a gravitational field. So similarly here also the electrostatic potential is the same concept. So here we will start understanding the definition. अब देख लीजिए electrostatic potential difference, electrostatic potential energy, you have to understand. The electrostatic potential at any point in the region of electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive base charge. In bringing a unit positive base charge without any acceleration. That means you have to bring it slowly from infinite to that particular point. इसके फॉर्मूला देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से डिनोट करो, कैपिटल V. So that capital V is equal to work done W divided by charge. So it is nothing but the work done per unit charge. It is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Because RHS में आप देखेंगे तो ये work done है, तो वो scalar है. Electric charge तो पहले से scalar है, so there is no vector quantity. इसका मतलब है electrostatic potential scalar quantity. Unit क्या आना चाहिए? जूल पर कूलम आना चाहिए, राइट? लेकिन ये वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसका यूनिट रखा हुआ है वोल्ट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V. अब उसकी यूनिट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं. 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल पर कूलम. इट इज 1 जूल पर कूलम. इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है वहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम 1 जूल पर कूलम कहते हैं. इट इज डायमेंशनल फार्मूला इज ml स्क्वायर e raised to -3 a raised to -3. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ये जो डेफिनेशन है वो बेसिकली ये हमें बताता है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. इसके लिए 1 यूनिट कूलम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी एक गिवन पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है वहां तक लाने में कितना काम करना पड़ता है, कितना वर्क डन करना पड़ता है. दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का इम्पोर्टेंस. Electrostatic potential difference is very important. तो difference क्या है? It is nothing but the difference of the electrostatic potential between the two points. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है. That work done difference is called the electrostatic potential difference. इसकी definition हम पढ़ते हैं. Here it is written, electrostatic potential difference between the two point P and Q. अब फिगर में देख लीजिए, एक जगह P पॉइंट है, दूसरी जगह Q पॉइंट है, और काफी अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4 and so on. So because of all these charges, the electrostatic potential at P is supposed PQ and at Q is supposed BQ. और P से Q या तो Q से P तक हम ले जाना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं या उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं. So electrostatic potential difference between the 2 points P and Q of a charge configuration consisting of charges Q1, Q2, Q3, Q4 and so on. And Q is equal to the amount of work done by an external force in moving a unit positive base charge. किसी एक unit based positive charge को against the electric force from point Q to P, मतलब Q पॉइंट से P तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है along any path. आप देख सकते हैं फिगर के अंदर बहुत सारे पाथ दिखाए हुए. Now one thing you understand,
The difference of electrostatic potential does not depend on the path. आप किसी भी पाथ से ले जाइए, वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है. So from point Q to P along any path between these 2 points, figure shows that the work done on a test positive charge Q0 by the electrostatic field due to any given charge configuration depends only on the position of initial point Q and the position of final point P. So once again, I would like to tell you that potential difference always depend on initial and final position and not the path between the 2 points. Right? Understand very properly. कि दोनों के बीच का जो भी पाथ है, आप कितना भी लेंथी पाथ ले लीजिए, वर्क डन सेम ही है. So work done in depending on the path chosen in going from Q to P. So here in figure it is shown. अभी हम सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट P and Q. If suppose VQ and VP are the electrostatic potential at Q and respectively, then electrostatic potential difference between the 2 points Q and P, delta V, the change in potential कहते हैं, तो delta is change in potential. So VP minus VP, मतलब हम Q से P तक ले जा रहे हैं या P से Q तक ले जा रहे हैं, तो हमेशा आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना. So here Vp minus Vq. So delta V is equal to W, that is work done in bringing a unit positive charge from one point to another point. So WQP divided by Q0. हम किसको ले जा रहे हैं? Q0 को. वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ये होता है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस. आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी जो ये इलेक्ट्रिक प्लग्स दिए हुए हैं, उसमें नीचे जो 2 होल्स लिखे हुए दिए हुए हैं, उसमें से एक जो होल होता है वहां पर 230 वोल्ट आता है एसी, और दूसरी जगह जिसे हम मतलब जिसे फेज कहते हैं वहाँ 230 आता है, जिसे न्यूट्रल कहते हैं वहां पर 0 वोल्ट आते हैं. सो 230 माइनस 0 दैट इक्वल टू 230 वोल्ट. इसका मतलब ये भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और वो भी कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमेशा हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए. इट इज कॉल्ड 2 पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक में हमेशा 2 पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होती है. क्यों 2 पॉइंट होती है? क्योंकि ये डिफरेंस बताता है. हमेशा डिफरेंस की वजह से ही करंट का फ्लो होता है. पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है. ये बात अच्छी तरह समझिए. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. अब हम एक्चुअली पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया, राइट, पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उस पॉइंट के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है ये हमें फाइंड करना है. सो लेट P be the point at a distance r from the origin O at which the electric potential due to charge plus Q is required. मतलब हमने केस क्या लिया हुआ है समझ लीजिए. ये जो O पॉइंट है वहां पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ. P is the point where we want to find out the electric potential. P is the point. It is at a distance r from the origin. आप देख सकते हैं. So the electric potential उस पॉइंट के पास कितना है ये हमें फाइंड करना है. अब ये हम अलग अलग रीत से फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते हैं. देखो इन्फिनिटिव दिखाया हुआ. उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से धीरे 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 करके हम P पॉइंट के पास लाते हैं. काफी स्लोली लाना है, इसीलिए ऊपर की डेफिनेशन में विदाउट एक्सेलरेशन लिखा, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है वो स्लो होना चाहिए. तो हम वहां से लाते हैं E पॉइंट के पास, वहां से A पॉइंट के पास, वहां से B पॉइंट के पास, और फिर धीरे धीरे लाके P पॉइंट के पास. इसका मतलब है इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमें R डिस्टेंस से लाना है. तो ये हमने केस है. अब ये हम कैसे डिराइव कर सकते हैं देखिए. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P is the amount of work done. हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में लिखा हुआ है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a unit positive charge. In carrying a unit positive charge from an infinite distance to a point given point P. हम infinite distance से उस point तक उसे लाना चाहते हैं. As work done is independent of the path. हमने पहले ही लिख दिया है, मैंने 2-4 बार आपको समझाया भी है कि infinite distance से हम उस point के पास किसी भी path से ला सकते हैं.
and it is independent of the path. It always depends on the initial and final position and not on the path. तो ये अच्छी तरह से, so it is independent of the path. We choose a convenient path. अब सवाल ये है कि हम इतने सारे किसी भी पाथ से ला सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम कौन सा पाथ लेंगे जो हमें सबसे कन्वीनियंट। अब देखिए हमें हमें भी एक जगह से जब दूसरी जगह जाना होता है तो यूजुअली हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लेने की कोशिश करते हैं। खैर अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, कहीं रास्ता बंद है और हमें अगर दूर से जाना पड़े तो वो अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लें। So that is what called the convenient path along the radial direction from infinity to a given point without an acceleration. So let us suppose कि A be the intermediate point. Intermediate मतलब infinite और P point, उन दोनों के बीच का कोई एक पॉइंट ऐसा है जो A है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, एंड OA is equal to मतलब ओरिजिन से A का डिस्टेंस x. The electrostatic force on a unit positive charge at A is given by, अब हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स कितना होता है, F is equal to K Q into Q, Q1 Q2 upon R square. Q1 की जगह हम Q रखेंगे, Q2 की जगह टेस्ट चार्ज Q0 मतलब 1 कूलम लिया हुआ है तो 1 रखेंगे, और ओरिजिन से उस पॉइंट का A पॉइंट का डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर रखेंगे। कूलम्स लॉ हमारी फॉर्मूला क्या है, फिर से एक बार बता देता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की जगह हमने 1/4 का एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है, Q1 की जगह Q लिया हुआ है, और Q2 की जगह Q0 मतलब 1 कूलम लिया हुआ है, और डिस्टेंस स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। Small work done in bringing or moving the charge to a distance dx from A to B. अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dw work done is equal to force into displacement. तो fd cos थीटा, cos की जगह 180 डिग्री है क्योंकि ये अगेंस्ट है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है, इसलिए 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में cos 180 माइनस 1 आता है, तो cos 180 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो dw is equal to minus f dx. So this is nothing but the small amount of work done in shifting electric charge or unit positive charge by a distance dx against the gravitational against the electric force F. मतलब जो जैसे हम gravitational force पे काम करते हैं वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में काम। हमारे केसेस में भी आप अगर स्टेयरकेस चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं या सेकंड फ्लोर पे आते हैं या थर्ड फ्लोर पे आते हैं, इसका मतलब है आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब वर्क डन अगेंस्ट फोर्स किया जाता है, वरना पोटेंशियल एनर्जी आती नहीं है। So dW is equal to minus FD. Total work done in moving a unit positive charge from an infinite distance to a P. अब हम थोड़ा 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 जो मूव करते थे, अभी हम टोटल मूवमेंट का पूरा समेशन लेते हैं। सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए गिवन पॉइंट R, तो इसलिए माइनस एफ डी एक्स रख देते हैं। एफ की वैल्यू ऊपर के इक्वेशन नंबर 1 से रख देते हैं, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं और जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इट इज dx अपॉन एक्स। सो वो फिर आगे का तो मैथमेटिक्स आपको समझ में आ ही रहा है कि माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू माइनस 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम x रेस टू माइनस 2 लिख सकते हैं। अभी x रेस टू n की फॉर्मूला क्या है, x रेस टू n की फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, मतलब जो माइनस 2 है वो आगे आ जाएगा और ऊपर से एक और कम हो जाएगा। इसका मतलब है इंटीग्रेशन उसका रिवर्स है, ये dx मतलब डेरिवेटिव की फॉर्मूला है, उसका रिवर्स कर देंगे तो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस, और माइनस 2 प्लस 1 नीचे रखेंगे तो वो भी माइनस 1 होगा, अल्टीमेटली वो माइनस से इसको प्लस बना देगा। सो 1 अपॉन आर, फिर इंटीग्रेशन की लिमिट रख देते हैं, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या आ गई, W इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब है के Q अपॉन R, इन शॉर्ट के Q अपॉन R, आप देख सकते हैं। From the definition of electric potential, this work is equal to the potential at a point P. इसका मतलब है वर्क डन जो है वो P पॉइंट के पास लाने का जो वर्क डन है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर।
के क्यू अपॉन के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। क्यू मतलब कौन से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, और आर मतलब उस पॉइंट से, उस पॉइंट का क्यू से डिस्टेंस, लाइक लाइन जॉइनिंग द डिस्टेंस, तो दैट वैल्यू आर की रख देनी है। इस तरह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस पी पॉइंट के पास मिल रहा है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तो आप जानते ही हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। Hence, we assume that the electrostatic potential is zero at infinity. अब नेचुरली आप किसी चार्ज से काफी दूर 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 चले जाइए और काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चले जाइए तो नेचुरली उसकी इफेक्ट जीरो हो जाएगी, अल्टीमेटली उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा एट एन इनफाइनाइट। सो हियर इट इज वी हैव कंसीडर एट इनफिनिटी द पोटेंशियल इज जीरो। Equation shows that in equal distance from the positive charge q, value v is same. अब इतना तो समझ में आ रहा है कि r की वैल्यू अलग अलग जगह रखेंगे लेकिन सेम रखेंगे तो पोटेंशियल सेम ही आएगा। जब तक r की वैल्यू चेंज नहीं होती है पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है, इसका सिर्फ वैल्यू की बात है और ये स्केलर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट चार्ज है उसके पूरे आजू बाजू एक सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे इक्वल रेडियस का, सेम रेडियस सब जगह रखेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल के किसी भी पॉइंट के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम है और इसी सर्कल को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सिमिलरली हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसा ही है। आप जान लीजिए कि सपोज आपने क्लाइंब करके फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, अब उस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप कहीं पर भी घूमें तो ग्राउंड के कंपेयर में हाइट सेम रहेगी, अल्टीमेटली पोटेंशियल चेंज नहीं होता। पोटेंशियल कब चेंज होगा? जब आप आपकी जो हाइट है या तो फिर ग्राउंड से डिस्टेंस है, ऊंचाई है, वो चेंज करेंगे तो ही पोटेंशियल चेंज होगा, वरना आप उसी फ्लोर के ऊपर सेम हाइट पे कितना भी घूमेंगे तो भी उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो उस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जो आगे आएगा फिगर गिवन बिलो, आगे फिगर भी रखी हुई है, गिवन बिलो shows the variation of electrostatic potential with the distance. So V is proportional to 1/r, ये खास नोट करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड था वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, जबकि पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है डिस्टेंस अगर आप डबल कर देते हैं तो पोटेंशियल हाफ होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो 1/4 हो जाता है। ये बात अच्छी तरह से नोट करें। डिस्टेंस को डबल करने से पोटेंशियल हाफ होता है, जबकि फील्ड जो है, फील्ड की वैल्यू वो 1/4 हो जाता है, 1/4। अब ये जो पूरा यहाँ पर ग्राफ दिखाया हुआ है, इट इज इट कैन गिव यू द आइडिया। डॉटेड लाइन जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब है वो पोटेंशियल, और जो कंटिन्यूअस लाइन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। दोनों में वेरिएशन आप देख सकते हैं कि कैसा है। राइट, डॉटेड लाइन जो है वो आगे चल के थोड़ा कम वेरिएशन में आता है, राइट, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वेरिएशन बहुत ज़्यादा। So variation of electrostatic potential V and electrostatic field with distance r. With distance r मतलब x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया हुआ है और y एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। Due to a single charge F proportional to 1/r², E proportional to 1/r², single charge की बात हो रही है, but V proportional to 1/r, where r is the distance from the charge. अब ये देखिए, ये जो सारे वेरिएशंस आपको दिखाए गए हैं इक्वेशन के फॉर्मेट में, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा क्वेश्चन पेपर में भी कि ये एमसीक्यू में ये सब पूछा जा सकता है, तो उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब अभी तक हमने एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है ये देखा। अब हम बहुत सारे चार्जेस लेते हैं, ये सेम है जैसे फर्स्ट लेसन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए किया था, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब फिगर में आप देख लीजिए, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे चार चार्जेस दिखाए हुए। चारों चार्जेस से अलग अलग डिस्टेंस पे, मतलब P पॉइंट का हमने डिस्टेंस दिखाया हुआ है, तो उसको हम R1P कहते हैं, R2P कहते हैं, R3P एंड R4। हर एक को हम R1, R2, R3, R4 ऐसा नाम दें।
सो नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है, पी पॉइंट के पास रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 सबके वजह से। अब हमने इससे पहले के टॉपिक में एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है वो सीख लिया है। अब यहाँ एक की जगह चार चार्जेस है, तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्जेस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट के पास फाइंड करेंगे, फिर सबका एल्जेब्रिक सम ले लेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा रिजल्टिंग पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इसका मतलब है टॉपिक क्या हम सीखने वाले हैं वो समझ लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। चलो डिस्कस करते हैं। लेट देयर बी द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो at a distance r1 r2 r3 r4 and so on respectively from the given point P। तो P पॉइंट के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं जहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, where the electric potential is to be calculated। Potential at point P due to number of charges। तो उसमें से हम पहला चार्ज लेते हैं Q1। तो Q1 की वजह से कितना चार्ज मिलेगा, तो हमारी फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन R। हमें क्या रखना है, KQ अपॉन R। सो V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। अब जब हम V1 ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, KQ1 अपॉन R1। सिमिलरली V2 के लिए KQ2 अपॉन R2, V3 के लिए KQ3 अपॉन R3 एंड Vn के लिए सिमिलरली n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए KQn अपॉन Rn। ऐसे हर एक अलग अलग चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल फाइंड करें। फिर से एक बार बता देता हूँ, पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन R। K की वैल्यू तो स्टैंडर्ड ही होती है, K की जगह हमने यहाँ पर रखा हुआ है 1/4πε। अब हमें क्या करना है, सबका रिजल्टिंग समेशन लेना, रिजल्टिंग समेशन। सो यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने फर्स्ट लेसन में पहले ही सीख लिया है, वी ऑब्टेन रिजल्टिंग पोटेंशियल एट पॉइंट P due to charge configuration as a algebraic sum of the potential due to individual charges। तो हमने पहले ही सीखे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसे कहते हैं, इट इज द सम ऑफ ऑल other values according to the their direction point of view या algebraic sum point of view। So V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए, आप देख रहे हैं इक्वेशन में, इट इज वेरी इजी। सब में से 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए। अब अगर सारे चार्जेस इक्वल है तो सब जगह Q आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सारे चार्जेस अलग अलग हैं, डिस्टेंस भी अलग अलग है, तो Q1 अपॉन R1P, Q2 अपॉन R2P, Q3 अपॉन R3P एंड सो ऑन। तो हम अलग अलग क्यों लिखे हैं, उसकी जगह सिग्मा लिख दीजिए, तो सिग्मा QI अपॉन RI। इसका मतलब है V इज इक्वल टू KQI अपॉन RI, जिसमें I इज इक्वल टू 1 अप टू n यूनिट्स। So what is the net electrostatic potential at a given point due to the multiple charges? Multiple charges. It is equal to the algebraic sum of the potential due to the individual charges at a particular point। इसका मतलब है एग्जाम में भी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस ऐसा डेफिनेशन पूछे, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट due to multiple charges is equal to the algebraic sum of the potential due to the individual charges at that particular point। So mathematically what we can write, V net, so the net electric potential is always equal to sigma I is equal to 1 up to n VI। तो सबका हमें टोटल करना, समझ में आ रहा है सब लोगों को। नाउ पहले लेसन में हमने एक डिवाइस बनाया, अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेकर के एक डिवाइस बनाया था। कौन सा डिवाइस, उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है ये डाइपोल, हम फिर से एक बार अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एक बार फिर से समझ लीजिए, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट मतलब एक जगह हमने प्लस क्यू लिया हुआ है, दूसरी जगह माइनस क्यू लिया हुआ है, और दोनों के बीच में एक छोटा डिस्टेंस रखा हुआ है। उस डिस्टेंस को भी मेजर कैसे किया हुआ है, दोनों चार्जेस को हम जब जोड़ देते हैं तो उसे ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उसके ऊपर एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। उस सेंटर पॉइंट को हमने ए से ओ से इंडिकेट किया हुआ है। सो ओ से एक तरफ का डिस्टेंस स्मॉल ए है, दूसरी तरफ का डिस्टेंस स्मॉल है, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज इज 2a। अब ये सिस्टम, इस सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं।
अब इस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल आता है वो हमें फाइंड करना है। तो फिगर में आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इन फिगर इट इज शोन प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्जेस रखे हुए हैं ए और बी पॉइंट के पास, 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों से r1 और r2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने p लिया हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए, पॉइंट p जो है वो माइनस q से r1 डिस्टेंस पे है, प्लस q से r2 डिस्टेंस पे, और सेंटर से r डिस्टेंस पे। अब सब जगह एंगल उसका जो एंगुलर पोजीशन है वो देखिए। तो एंगुलर पोजीशन ऊपर के साइड में थीटा है, तो नेचुरली नीचे 180 माइनस थीटा होगा, वो आप ज्योमेट्री इजीली समझ सकते हैं। तो उसकी थियरी रीड कर। लेट अस अंडरस्टैंड और कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges plus q and minus q separated by a distance 2a। अब डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू एनी वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है, 2a, सो q इंटू 2a। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें फाइंड करना है। चलो फिगर भी समझ में आ गया, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब इसका आगे का कैलकुलेशन कर। लेट o बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल, p be the any point near the electric dipole incline at an angle theta। मतलब हमने p पॉइंट ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करता है उसके साथ थीटा एंगल बना है, as shown in the figure। let p be the point at which electric potential is required। तो पोटेंशियल p ड्यू टू, अब हम दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल फाइंड करें। तो माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, के क्यू अपॉन आर। तो k की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट, q की जगह माइनस क्यू रखेंगे और r की जगह r1। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस q चार्ज, तो सेम v2 इज इक्वल टू q की जगह q रखेंगे, k मींस 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड r1 की r की जगह r2। द पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द वर्क। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, इट इज रिलेटेड टू द वर्क and we have found out the electric potential due to the two different charges। So now what is the resulting electric potential? That is again the principle of superposition, right line। So therefore the potential at point P due to dipole, तो दोनों का टोटल कर दीजिए, v1 plus v2 algebraic sum। So q upon 4 pi epsilon naught कॉमन आ जाएगा, 1 upon r2 minus 1 upon r। तो ये इसकी फॉर्मूला है। नाउ बाय ज्योमेट्री, अब वो ज्योमेट्री पर से आप काफ़ी सारा समझ सकते हैं। वो एक्चुअली जब बोर्ड के ऊपर आपकी जो फैकल्टी है हम लोग देखेंगे उस वक्त मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये जो R1 और R2 है वो वेक्टरिकली कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रॉम द फिगर इट इज रिटन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा होता है, और R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ar cos 180 माइनस थीटा। एक जगह थीटा एंगल है, दूसरी जगह 180 माइनस थीटा। तो अल्टीमेटली R2 स्क्वायर इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो उसको आगे ले लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos। सब कुछ इक्वेशन में प्रूव करके ही लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं, राइट लाइक। तो वो आप इस पर से अभी r जो वैल्यू है वो a के कंपेयर में बहुत कम है ऐसा मान लें, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो a अपॉन r इज वेरी स्मॉल, ऑल्सो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बहुत सारा नेग्लेक्ट, फिजिक्स में हमेशा ऐसा होता है कि काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो है वो बड़े डिस्टेंस के कंपेयर में अगर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। हम जानते हैं कि हम एक्चुअली प्रैक्टिस में ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू इफेक्ट करती है, लेकिन फिर थियोरेटिकली उसे नेग्लेक्ट करना ही पड़ता है। एक बार हम थियोरेटिकली कोई वैल्यू पे पहुंच जाते हैं उसके बाद प्रैक्टिकली उसमें प्लस माइनस करके उतना जोड़ देते हैं, तो आप समझ सकते हैं। So here a square upon r square can be neglected. So Vp is equal to q upon 4 pi epsilon naught r आ जाएगा। फिगर पर से मैथमेटिकली 1 plus a upon r cos theta minus 1 minus a upon r cos theta, ये सब कैंसलेशन कर देंगे, तो Vp is equal to p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square। p कहाँ से आ गया, ऊपर के इक्वेशन में तो p था नहीं, लेकिन वो 2a into q करने से वो p मिल जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वो डाइपोल मोमेंट की जगह हम p रख देंगे, p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब ये हुआ कि p cos थीटा इज इक्वल टू p cos थीटा इज इक्वल टू p डॉट r होगा।
P cos theta is equal to P dot R हो जाएगा. R is the unit vector along the position vector. आप जानते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जब भी cos थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है, sin थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट cos थीटा. सेकंड cos थीटा होता है तो स्केलर बन जाता है, sin थीटा होता है तो वो वेक्टर होता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इज P is equal to P dot R upon 4 pi epsilon naught. इसका मतलब है, अभी फिर से देख लीजिए, इससे पहले के इक्वेशन में V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, अब इसमें V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर आ गया. इसका मतलब है सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल में होता है, लेकिन अगर डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, उसमें सिर्फ 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल में. दैट मीन्स सिंगल चार्ज में डिस्टेंस डबल करेंगे तो पोटेंशियल हाफ होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो पोटेंशियल 1/4 हो जाता है. ये बात अच्छी तरह से. सो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ. नेक्स्ट टॉपिक, नाउ इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेसेस. ऑलरेडी इसका एक छोटा सा कंसेप्ट इससे पहले के टॉपिक में मैंने दे भी दिया था, फिर से एक बार समझा देते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R हमने पहले ही देखा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R. इसका मतलब है जब तक R की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक पोटेंशियल सेम रहता है. इफ R इज सेम, पोटेंशियल इज सेम. इसका मतलब है कोई एक अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हो, उसके आजू बाजू R रेडियस का एक सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल के ऊपर का सारे पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस चार्ज से तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सर्कल में हर जगह रेडियस सेम होती है. दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल will be same from the given charge. Ultimately, the potential at all these points will be same. So, the surface joining all these points will be forming a circle. उस सर्कल के ऊपर जो सरफेस बनता है उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं? क्योंकि उस सरफेस के ऊपर के सारे पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड. Theoretically, any surface which has same electrostatic potential, कोई भी ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर सभी पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है एट एवरी पॉइंट, ऑन इट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस. आप भी जानते हैं कि हम प्लेन सरफेस के ऊपर, मतलब अर्थ के प्लेन सरफेस के ऊपर हम इधर उधर कहीं पर भी घूमते हैं तो हमें इतनी थकान महसूस नहीं होती जितनी कि हम क्लाइंबिंग करते हैं, कहीं स्लोप के ऊपर चढ़ते हैं. क्यों ऐसा है? क्योंकि वो सारे सरफेस अगर प्लेन सरफेस है तो सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहता है, और जब हम क्लाइंबिंग करते हैं, कहीं ऊपर चढ़ते हैं तो हम अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं. अल्टीमेटली हमें थकान महसूस होती है, वर्क डन होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी ऐसा ही है, सेम. जहाँ रेडियस सेम है वहाँ पोटेंशियल सेम होता है. तो फॉर ए गिवन सिंगल चार्ज पोटेंशियल इज गिवन बाय V is equal to KQ upon R. This indicates that V is a constant if R is constant. अगर R constant है तो V constant. Thus, the equipotential surface for a given single point charge are spherical surfaces centered at the charge. मतलब किसी एक चार्ज के आजू बाजू आप एक स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं. उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम मिलेगा आपको. राइट, कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी रीजन इन विच the equipotential surface can be drawn through any region in which there is electric field. If all the points at the same potential in the electric field are joined, then the equipotential surface can be obtained. The shape of equipotential surface कौन सा? अब equipotential surface का shape कौन सा होगा? तो line charge is a cylinder. Line charge cylindrical है. Point charge spherical है. आप जानते हैं point के आजू बाजू sphere draw कर सकते हैं, लेकिन लाइन के आजू बाजू स्फेरिकल सिलिंड्रिकल ड्रॉ, पूरा सिलेंडर ड्रॉ. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी आप समझ लीजिए. डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एज इट गिव्स द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में कोई भी सारी जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, वो हमेशा पैरेलल आएगी या तो नॉन इंटरसेक्टिंग आएगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करे
तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल गेट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलता है? जो भी लाइन है उसको हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है. अब एक पॉइंट के पास दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो अल्टीमेटली दो डायरेक्शन मिलेंगे, which is practically not possible. That is why in equipotential surfaces the two lines or surfaces never intersect. Equipotential surfaces are closely spaced in the region where the strong electric field are. जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेसेस होंगे इक्विपोटेंशियल वो पास पास में होंगे, बहुत ही पास क्लोजली होंगे. लेकिन द रीजन जहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ नेचुरली उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो तो अल्टीमेटली उसकी इफेक्ट कम आए. फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन equipotential surface through the a point is normal to the electric field at that point, normal to the electric field at that point, and direction from one equipotential surface at a higher potential to the other equipotential surface at a lower potential. तो अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है वैसे कि वो लाइन जॉइनिंग हमेशा परपेंडिकुलर और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. आप जानते हैं ये सिंपल पानी का कंसेप्ट है. सी इलेक्ट्रिक करंट ये पानी का ही कंसेप्ट है. पानी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल विदाउट वर्क डन कभी नहीं जाता, नेवर. अपने आप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसा ही होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर. नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल. मैंने वही आपको एक एग्जांपल देके भी बताया था कि अगर अर्थ के भी प्लेन सरफेस पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट करते हैं तो आपको कहीं पर भी उधर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब है आपको वहां पर वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल है. फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E let along x-axis the equipotential surfaces are normal to the x-axis, that is the plane parallel to the x or y z. So it is always perpendicular to the each plane. तो आप समझ सकते हैं कि x axis, y axis और z axis है. So for a uniform electric field E let along x-axis the equipotential surfaces are normal to the x-axis, that is plane parallel to the y and z. तीन अलग अलग डायरेक्शन में आपको वो प्लेन्स मिलेंगे. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन डिफरेंट केसेस. अब अलग अलग केसेस लेते हैं जिसमें पहला केस कौन सा लेंगे? पॉइंट चार्ज में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा? स्फेरिकल. क्यों स्फेरिकल मिलेगा? क्योंकि कोई भी पॉइंट के आजू बाजू आर रेडियस का हम एक सर्कल या स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं. अगर 2 डायमेंशनल है तो सर्कल ड्रॉ होगा, 3 डायमेंशनल है तो स्फीयर. और वो सारे स्फीयर का डिस्टेंस, सारे उस स्फीयर के सरफेस का ऊपर का सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस चार्ज से सेम होगा क्योंकि रेडियस सब जगह सेम होती है. और इसीलिए एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्रोड्यूसेस बाय ए पॉइंट चार्ज ऑन ए spherical symmetrical charge distribution is a family of concentric sphere as shown below in the figure. तो उसमें फिगर में हम देख सकते हैं कि ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप फिगर में देख लीजिए. R1, R2, R3, R4 चार अलग अलग सर्कल ड्रॉ किए हुए. तो वहाँ से प्लस क्यू चार्ज सेंटर से और वो सारे जो सरफेसेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये टॉपिक आज का. मतलब हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड E, कैपिटल E से हम इंडिकेट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से इंडिकेट. तो E और V के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड. So let us consider a positive charge Q0 makes a distance ds, moves a distance ds from one equipotential surface to another. The displacement ds makes an angle theta with the direction of the electric field. मतलब हम उसको मूवमेंट करवाते हैं. कितना मूवमेंट करवाते हैं? डिस्प्लेसमेंट ds कितने एंगल पे? थीटा एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ थीटा एंगल बनाने वाले डायरेक्शन में हम उसको मूवमेंट करवाते हैं. ये फिगर से आप देख सकते हैं. देख लीजिए E का डायरेक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन S के डायरेक्शन में है, राइट. और E का डायरेक्शन उधर दिखा हुआ है जिसके बीच में थीटा है. Q0 is the test positive charge, right?
सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में हम उसको मूवमेंट करवा रहे हैं. We know that the work done by the electric field on a test charge during its movement is minus q0 into d. अब ये कैसे मिला? कुछ समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू, मतलब पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव. सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q. तो W इज इक्वल टू Q इंटू डी. So minus q0 into d. We see that the work done by the electric field may also be written as scalar product. So it is q0 e dot ds. अगर डॉट हमें नहीं लिखना है तो cos थीटा लिखेंगे. इसका मतलब है q0 into e cos थीटा. dv की वैल्यू हमने रख दी है e dot ds. तो ये फिगर के अंदर ये सब दिखा है. अभी इक्वेटिंग दिस टू एक्सप्रेशन, एक जगह हमारे पास क्या है माइनस q0 इंटू डी वी, और दूसरी जगह वर्क डन के लिए भी लिख सकते हैं q0 e cos थीटा ds. दोनों को इक्वेट कर देते हैं. दोनों जगह से सामने सामने से q0 कैंसिल हो जाता है. तो अल्टीमेटली e cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dv. Since e cos theta is a component of a in the direction of ds, therefore अभी वो in the direction of ds ही है, इसका मतलब है थीटा कितना हो गया 0 और cos 0 कितना होता है 1. तो अल्टीमेटली es is equal to minus dv by ds. अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट मिलेंगे, दैट इज ex, ey एंड ez इन x, y एंड z डायरेक्शन. उसको हम क्या कहते हैं? एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ ई एट एनी. सो ई कैन बी रिटन एज ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड के. ये क्या है एग्जैक्टली? 11th स्टैंडर्ड में आपने वेक्टर्स पढ़ा था. वेक्टर्स में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स या तो लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एनी वेक्टर, उसके 3 डायरेक्शन के कंपोनेंट के टर्म्स में हम आई जे के कंपोनेंट के टर्म्स में हम कोई भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो ई एक्स इज इक्वल टू, this is partial derivative of v with respect to x. Ey is equal to partial derivative of v मतलब potential with respect to y, and Ez is equal to partial derivative with respect to z. ये एग्जैक्टली ये है कि कोई भी पार्टिकल को जब हम मूवमेंट करेंगे, कोई चार्ज को मूव करते हैं, तो उसके x डायरेक्शन का कंपोनेंट ex dx है, y डायरेक्शन का कंपोनेंट dy है, और z डायरेक्शन का कंपोनेंट dz है, और कॉरस्पॉन्डिंग e का कंपोनेंट ex, ey एंड dz. अब आपको समझ में आया क्या है? तो इस तरह से हम ये तीनों कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं. अब रिजल्टिंग पोटेंशियल E is equal to algebraic sum of all these 3 components. तो ये तीनों कंपोनेंट को हम जोड़ देते हैं i j k के टर्म्स. So E is equal to minus of dv by dx I plus dv by dy j plus dv by dz k. तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, आगे माइनस की साइन है. क्यों माइनस की साइन है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है. हमें जब मूवमेंट करनी है तो मूवमेंट तो हमेशा अगेंस्ट डायरेक्शन ही किया जाता है. वर्क डन हमेशा अगेंस्ट डायरेक्शन ही किया जाता है. सेम डायरेक्शन में तो हम वर्क डन करने की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है? आपने देखा होगा कि आपको अगर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर जाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. लेकिन अगर जब नीचे उतरते हैं तो आपको वर्क डन करना नहीं पड़ता. वैसे भी हम खिड़की से नीचे कूद जाएंगे तो डायरेक्टली नीचे चले जाएंगे. ये तो हम अपनी सेफ्टी की वजह से स्टेयरकेस से नीचे उतरते हैं, वरना तो हम ऊपर से नीचे ऑटोमेटिक आ सकते हैं. For a simple situation in which the electric field E is uniform, तो अगर सब जगह भी सेम है तो फिर आई जे के वगैरह की कोई जरूरत नहीं है. तो दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस. इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेगेटिव साइन shows that the direction of electric field E in the direction of decreasing potential. Since delta V is negative, then delta V is equal to minus of delta V. We can rewrite this equation like this. That is E modulus of E is equal to minus delta V upon delta S or delta V upon delta S. The field is given like this. Further, the magnitude of electric field is given by change in magnitude of electric potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point. कि आपको अगर ये डेफिनेशन पूछे तो आप वर्ड्स में इस तरह से लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहते हैं?
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू जब डिस्टेंस लिया जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, राइट, देन इट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल का ग्रेडियंट लिया हुआ है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सो E is a potential gradient minus of potential gradient. Thus, we arrive at two important conclusions concerning the relation between electric field and potential, which are as given below. Electric field is in the direction in which the potential decrease is steepest. Because then the electric field is in the direction in which the potential decreases steepest. इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर डिस्टेंस को मूवमेंट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, the equipotential surface at that point. So in this way we can here stop the recording.